Hi friends, I am Muhammad Ishaq Bilgi. In previous video, we are discussing about the basic thing of the psychology, methods of the psychology and branches of the psychology. Now, in today's video, we are discussing about the some special points. These special points are most important for the upcoming examinations. तो याद रखो हमें ये स्पेशल पॉइंट्स पढ़ने की क्या जरूरत है बोले तो जो भी हमें पिछले वाला पार्ट जब कंप्लीट करते हैं एक लेसन वगैरह तो उसमें जो भी छुटा हुआ पॉइंट रहता है जो भी छोटे छोटे जो भूल गए थे पॉइंट्स उन पॉइंट्स को दोबारा क्या है स्पेशल पॉइंट्स में लिखाया जाता है। ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इंस्टीट्यूशन की खासियत है, तो आज भी हम वही करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले तुम लोगों से एक गुजारिश है, तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेरे हर वीडियो की सूचना आप तक पहुंचने के लिए बेल आइकॉन को क्लिक करिए। फ्रेंड्स, ओके, मैं यहाँ बोर्ड के ऊपर चंद स्पेशल पॉइंट्स लिखा हुआ हूँ, चंद स्पेशल डेट्स लिखा हुआ हूँ। इतना ही नहीं है, आज का पूरा वीडियो ही स्पेशल पॉइंट्स के ऊपर है। तो फर्स्ट पॉइंट, इन द ईयर 1590, 1590 है 1590, in the year of 1519 one German psychologist is there, Rudolf Gekel. He coining the term of psychology. Okay, who was the father of psychology? Father of psychology Wilhelm Wundt. तो हमें उनकी डेट देखते हैं कब, 1879, बट ये उसकी पहले वाली डेट है, ध्यान से। तो मतलब साइकोलॉजी वाला वर्ड पहले ही इस्तेमाल हुआ है, जिस इस्तेमाल करने वाले कौन है? रुडोल्फ गेकल, ए जर्मन साइकोलॉजिस्ट, यूज्ड और coining the term of the psychology. Next, in the year 1913, the J.B. Watson presented or proposed the behavior theory, behavior concept. Okay, behavior concept को J.B. Watson देते हैं, बस again J.B. Watson in the year 1924 he published a book. J.B. published a book. The book name is Behaviorism. ओके, यहाँ बिहेवियरिज्म करने की बुक लिखते हो। तो मैं पिछली वीडियो में क्या है 1924 में ये कुछ करेक्शन हुआ था, आगे पीछे वाला काम हुआ था, इसे करेक्ट कर लो। इन द ईयर 1913 he present the behavior theory and he published the book Behaviorism in the year 1924. In the year 1953 another psychologist B.F. Skinner, क्या है B.F. Skinner क्या करता है? B.F. Skinner published a book. B.F. Skinner published a book. The book name is published a book. Book का नाम लिख लो, Science and Human Behavior. Science and Human Behavior. Science and Human Behavior. Next one, again another psychologist, Abraham Maslow. हाँ, तुम लोग एक पॉइंट याद दिलाना चाहता हूं, he was the father of, ठीक है, पिछली वीडियो में बोल दिया हूं, he was the father of humanitic psychology. He published a book in the year 1954. The book name is Motivation and
personality. Okay, in the year 1954, Abraham Maslow published a book. The book name is Motivation and Personality. In this Motivation and Personality, he explained about the humanistic psychology. Therefore, he was called as the father of the psychology, a father of the humanistic psychology. Next, another date is missing. यहाँ पे आना, उसकी डेट यहाँ पे लिख दो 1916. In the year 1916, the Calcutta University opened a psychological department in the, क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पर, the Calcutta University open a psychological department, स्टडी के लिए अपने में एक ब्रांच खोलते हैं कलकत्ता वाले, फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया में अगर कोई पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट था बोलेगा तो वो है कलकत्ता यूनिवर्सिटी इन द ईयर 1960. अगेन इन द 1954 द साइकोलॉजिकल ब्यूरो, द ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी established in 1954 at Allahabad अब उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में क्या है, साइकोलॉजिकल ब्यूरो खोला जाता है. नेक्स्ट, इन द ईयर 1954 निम्हांस क्या है नाम, ये नाम बहुत फेमस वाला है. ओके, निम्हांस इन बेंगलुरु. Okay, in the year of 1955, the Indian government and the Karnataka government think about the mentally challenged patients and open a Nimhans mental hospital in the Bengaluru. Nimhans. क्लियर है पॉइंट? यहां तक आपको क्लियर है, मैं समझ रहा हूं पॉइंट, पूरे पॉइंट क्लियर करते चले जाओ. इन ईयर 1978 it is the most expected question in the upcoming examinations. 1978 Herbert Simon, वो Herbert Simon was awarded by Nobel in the year 1978. ओके, साइकोलॉजी के अंदर इनको क्या है, साइकोलॉजी नहीं साइंस के रूप में ही इनको एक नोबेल अवार्ड दिया जाता है 1978 के अंदर हर्बर्ट साइमन को. ओके, ही वाज आल्सो वन ऑफ द साइकोलॉजिस्ट. किस लिए दिया जाता है इनको, हर्बर्ट साइमन को किस लिए दिया जाता है? He proposed the concept of decision making. Most important concept. A decision making के बारे में क्या है उनको, हर्बर्ट साइमन को क्या है, in the year 1978 the Nobel Award दे के क्या उनको क्या करते हैं, सम्मान दिया जाता है. नेक्स्ट, इन द ईयर 1987 लास्ट डेट, इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी of psychology established in इलाहाबाद ऑफ उत्तर प्रदेश के अंदर ही डेट बाकी का कन्फ्यूजन नहीं होता. फर्स्ट वन 1916 डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी. नेक्स्ट 1964 सॉरी 1954
ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी इलाहाबाद। 1953 बीएफ स्किनर के बारे में है। तो यहाँ पे 1916 और 1964 ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी एंड साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट, लास्ट में इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी एस्टैब्लिश्ड इन द इलाहाबाद। जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो इलाहाबाद के अंदर, जो डिपार्टमेंट है वो क्या है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर है। ये पॉइंट को तुम्हें याद रखना बहुत जरूरी है। चलेंगे आगे फिर पॉइंट्स के साथ। मैं ये समझ रहा हूं कि मेरी क्लास से बहुत सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, ये भी बताना चाहता हूं कि सम रीजंस की वजह से क्या है, मुझे डेली का डेली वीडियो अपलोड करने नहीं हो रहा। अगर आपका साथ मिलता रहा, आप लाइक कमेंट शेयर ज्यादा करते रहे, तो एक हमें भी एक दिलचस्पी पैदा होगी और वीडियो डेली डालने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। प्लीज चैनल को लाइक कमेंट शेयर करते चले गए तो हमको भी एक बढ़ावा मिलेगा। ये आपसे रिक्वेस्ट है, अदरवाइज योर चॉइस। ओके, नेक्स्ट स्पेशल पॉइंट, Wilhelm Wundt. Wilhelm Wundt. Who is he? Wilhelm Wundt. हाँ, if you watching all the videos of my channel, तो उसका आंसर आपको पता होना ही है। Wilhelm Wundt, he was the father of the psychology. Why? He was called as the father of psychology. वो स्पेशल पॉइंट है आपका। Why? Because he provide the scientific base to the psychology. Scientific base देते साइकोलॉजी को, इसीलिए उसे हमें क्या बोलते हैं। Next point, the ancient method of the psychology. And ancient method of the psychology. Okay, psychology. तो एंशिएंट मेथड कौन सा है साइकोलॉजी का, पूछ रहा है। तो मैं आपको सीरियल वाइज लेकर आया हूं। पिछली वीडियो में जाकर वीडियो देखो भाई, टेंशन नहीं लेने का है, कॉन्सेप्ट क्लियर आ जाना पड़ता। ओके, यहां पे क्या बोल रहा है ना, एंशिएंट मेथड कौन सा है। मैं सीधा सीरियल वाइज वो पॉइंट लिखा हूं। तो जैसा जैसा कॉन्सेप्ट है वैसे वैसे नया कॉन्सेप्ट। देखो, इंट्रोस्पेक्शन मेथड पहला लिखाया था, इट इज ए लिख छोड़ा। एंशिएंट मेथड कौन सा है, Introspection method is the ancient method of the psychology. The newest method कौन सा है अगर पूछेगा बोलेगा तो मैं आराम से ये साइको एनालिसिस मेथड लिख सकती हैं। तो क्या, हाँ, साइको एनालिसिस मेथड मैं वहां पे लिखा था। इंट्रोस्पेक्शन मेथड, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटल मेथड, केस स्टडी, साइको एनालिसिस मेथड एंड लास्ट में एक लिखा था सर्वे मेथड। तो बाकी का वहां पे नया कौन सा है नहीं है, एक दो तीन कॉन्सेप्ट नए ही हैं वहां पे, जैसा कि साइको एनालिसिस है, एक्सपेरिमेंटल मेथड और केस स्टडी, ये सब नए कॉन्सेप्ट्स हैं। वहां पे नया कौन सा है नहीं पूछेगा आपको, लेकिन एंशिएंट कौन सा है पूछेगा तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड का एंशिएंट है। नेक्स्ट, ऑब्जर्वेशन मेथड Which type of याद रख लो, ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं समझ लो उसे। Which type of instrument used in the modern observation? मॉडर्न मतलब आज की दुनिया में, पहली वाली दुनिया में नहीं। पहली वाली दुनिया के अंदर ये दो आंख छोड़ के दूसरा ऑब्जर्वेशन नहीं कर देते। मॉडर्न पूछ रहा है, मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट कौन से हैं, ले लो। मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स, टेलीविजन, सीसीटीवी फुटेज, ओके, डिजिटल ले लो। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स एक्सेट्रा इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स। अब ऑब्जर्वेशन करना है तो हमें सामने बैठना को कोई नहीं है। अब के जमाने में क्या है, सीसीटीवी फुटेज लगाते, यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज लगे, कुछ नहीं करना है, हमको ऑब्जर्व कर रहे हैं। हाँ, पता नहीं है कि उसका कैमरा सीधा प्रिंसिपल के चेंबर को लगा रहता है।
क्यों? वहां पे ऑब्जर्वेशन होता रहता है। क्लियर है? ये मॉडर्न मेथड्स है, मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, द ओनली डीमेरिट ऑफ द ऑब्जर्वेशन मेथड, डीमेरिट, इसका डीमेरिट क्या है? ऑब्जर्वेशन मेथड का ओनली डीमेरिट बोल रहा है क्या है? देखो, ऑब्जर्वर, इफ ऑब्जर्वर कैन बी, इफ ऑब्जर्वर, if observer can prejudicial, ये वर्ड देख लो, प्रीजुडिशियल, इसका मीनिंग मैं उर्दू में बता देता हूं। प्रीजुडिशियल क्या है? प्रीजुडिशियल ऑब्जर्वेशन करने से पहले ही दिमाग में बटाले छोड़े रहते हैं, हमें कितना भी करो इन्हें मंद बुद्धि वाला है, हमें कितना भी ऑब्जर्व करो इन्हें ऐसा ही करेगा, ऐसा नहीं। हमारा मन पूरा साफ रहना, किसे भी ऑब्जर्व करते तो हमें पूरा, किसे भी, इन्हें हमारा घर वाला है, इन्हें बाहर वाला है, ऐसा पॉइंट एडवांसली सोच के नहीं रखना। अगर आप एडवांसली सोच लोगे, इट इज नॉट ए सक्सेसफुल ऑब्जर्वेशन। वो बोलते नहीं, चीटिंग नहीं करने का सर, चीटिंग नहीं, तुम्हारा गाँव वाला है बोल के चीटिंग नहीं करने का, सर तुम्हारे रिश्तेदार हैं बोल के चीटिंग नहीं करने का, आपको भी फेस हुई प्रॉब्लम है, तो उसे वो ऑब्जर्वेशन का डीमेरिट है। ऑब्जर्वेशन करते जब टीचर सभी को सेम है, और उसे ऑब्जर्वेशन करते हुए भी सामने वाले को नहीं मालूम होना है, और अपने को भी मालूम करना है कि हमें इसमें इंटरफेरेंस नहीं करना। तो ये एक डीमेरिट है। द मेजर मेरिट क्या है ऑब्जर्वेशन का? देखो बहुत ध्यान से, मेजर मेरिट क्या है इसका? सबसे मेजर मेरिट समझते नहीं, मेजर बोले तो समझना है आपको। मेरे सबसे बहुत इंपॉर्टेंट मेरिट कौन सा है? ऑब्जर्वेशन मेथड, सॉरी सम पॉइंट्स आर नॉट राइट ऑन द बोर्ड। ओके, जब बोलते, जब आपकी पेन चलते रहना, आपके नोट्स नोट डाउन होते रहना। क्यों बोलेगे? तो सब लिखते बैठा, अगर बोले तो वीडियो लॉन्ग होते जाता है, कितना लिखना है उतना पॉइंट डाउन करता है। तो मेजर मेरिट क्या है इसका बोलेगा तो, द डिस्कशन मेथड, सॉरी द ऑब्जर्वेशन मेथड टेक प्लेस और यूज्ड इन एनी वे, एनी टाइम एंड एनी सिचुएशन। ऑब्जर्वेशन मेथड को तुम्हें कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किस पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और किस वक्त पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल, तुम्हें सिनेमा घर में बैठे, पीछे जाके बैठ के उसे ऑब्जर्व करते बैठने का, रात के 12 बजे उन्हें सोए, उसे ऑब्जर्व करते बैठने का, कभी भी कर सकते ऑब्जर्वेशन मेथड। ये उसका मेरिट है, खुल के काम करना। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। व्हेन यू अंडरस्टैंड, इसी पे एक कमेंट हो जाए या लाइक हो जाए तो हमको भी अच्छा लगेगा। नेक्स्ट स्पेशल पॉइंट इज द केस स्टडी, ऑल्सो नोन एज the case study also known as the remedies or solution। ऑलरेडी में बोले से solution method, इसे हमें केस स्टडी को ऑब्जर्वेशन मेथड है, सॉरी रेमेडीज मेथड भी बोल सकते हैं और सॉल्यूशन मेथड भी बोल सकते हैं। बिकॉज व्हेन वी आर डूइंग द केस स्टडी, फाइनल स्टेज इज सॉल्यूशन देना है उसे, तो वो सॉल्यूशन मेथड भी उसे हमें पुकार सकते हैं। बिकॉज, तो उसका रीजन आपको बोल दिया, मेथड गिव सॉल्यूशंस टू द स्टूडेंट। नेक्स्ट पॉइंट, द मेजर रिस्ट्रिक्शन ऑफ द साइको एनालिसिस मेथड। मेजर रिस्ट्रिक्शंस बोले तो पाबंदी। ओके, 2 मिनट। Okay, the major restriction
ऑफ द साइकोलॉजी साइको एनालिसिस मेथड, साइको एनालिसिस मेथड का मेजर रिस्ट्रिक्शन या तो क्या है, स्पेशलिटी क्या है, स्पेशलिटी ले लो या तो रिस्ट्रिक्शन ले लो। उसका रिस्ट्रिक्शन क्या है बोलेगा तो क्या है, इट इज कंडक्टेड बाय द ओनली एक्सपर्ट्स, इसे एक्सपर्ट्स लोग ही कर सकते हैं, मैं जाके साइको एनालिसिस मेथड नहीं कर सकता। जो साइकोलॉजी के अंदर एक्सपर्ट्स हैं वैसे लोग ही क्या इसे कंडक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, द मेंटल प्रोसेस टेक्स प्लेस इन 3 स्टेजेस। द mental process takes place in the 3 stages. One is conscious लिखा है ऑलरेडी में, one is conscious, second is subconscious, third is unconscious। ये लिखा हुआ इट, ईगो एंड सुपर ईगो, ये ऑलरेडी पॉइंट लिखाया हूं। नेक्स्ट, there are 5 steps in teaching method, this concept given by the Herbart। हमें अभी भी बोलते हैं the 5 steps of the Herbarts बोल के बोलते हैं, Herbarts के 5 steps बोलते हैं। Next special point is the main object of the educational psychology, educational psychology, एजुकेशनल पिस्कोलॉजी। तो हम तो ऑब्जेक्ट्स ऑफ द साइकोलॉजी देखते हैं कि क्या है, आपको मैं इससे पहले भी बताया हूं। अब मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, तो उसका है टू अंडरस्टैंड द स्टूडेंट, टू अंडरस्टैंड द स्टूडेंट्स। तो आपको साइकोलॉजी पढ़ाने का मतलब क्या है, उसे तो एजुकेशन साइकोलॉजी बोलते हैं। बीएड वाले को साइकोलॉजी पढ़ाने का मतलब क्या है, कुछ नहीं। तो टू अंडरस्टैंड द स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड करना है। हाँ, अब जो 2 पॉइंट्स हैं ये पिछले क्वेश्चंस भी पूछा गया है। लर्निंग रूल्स and teaching rules। The learning laws given by the Thorndike for the first time। लर्निंग के अंदर इतने लॉज होना, लर्निंग का जो प्रोसेस है वो लॉज के रूल्स से चलना बोल के बोलने वाला पहला इंसान कौन है, E.L. थॉर्नडाइक। द टीचिंग रूल्स और द टीचिंग लॉज गिवन बाय द फॉर द फर्स्ट टाइम J.C. ब्रूनर क्या है, ये प्रिंसिपल्स देते हैं। नेक्स्ट स्पेशल पॉइंट इज द क्रिएशन ऑफ sound mind in a sound body। The creation of sound mind in a sound body, this quote given by the Aristotle। साउंड माइंड के अंदर, साउंड बॉडी के अंदर साउंड माइंड क्रिएट करना, मतलब एक हेल्थफुल बॉडी के अंदर एक हेल्थफुल वाला क्या है, एक हेल्थफुल माइंड उसे बनाना है बोल के बोलने वाला इंसान कौन है, अरिस्टोटल। ये भी पिछली एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट वन, ये पॉइंट लिख लो, रूसो, जे रूसो, जीन जेम्स रूसो। ओके, रूसो was the first philosopher who said the rule of education। who said the importance, समझ लो, who said the importance of a role of education on development of the human के डेवलपमेंट में एजुकेशन का रोल बहुत बेहतरीन है बोल के बोलने वाला इंसान कौन है, रूसो। नेक्स्ट, किंडरगार्टन कॉन्सेप्ट गिवन बाय द kindergarten concept given by the Froben।
कौन है? प्रोबेल. नेक्स्ट वन, द CCE कॉन्सेप्ट फर्स्ट गिवन बाय द रूसो. CCE मतलब चाइल्ड सेंटर एजुकेशन. चाइल्ड सेंटर एजुकेशन फर्स्ट सेड बाय द J.J. रूसो. J.J. रूसो. नेक्स्ट वन, अभी एक दो नाम ऐसे आते हैं, क्रो एंड क्रो. क्रो एंड क्रो. यहां पे तुम ना के कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं मैं. जब भी क्रो एंड क्रो आता किन्हें, उनके कौन सा भी एक डेफिनेशन देते हैं. डेफिनेशन किसके बोल के, वो डेफिनेशन में अगर इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज कौन सा बताए नो, एजुकेशन की डेफिनेशन हो, साइकोलॉजी की डेफिनेशन हो, इंटेलिजेंस की डेफिनेशन हो, किसी की डेफिनेशन हो, इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस कहने का कॉन्सेप्ट आया. ओके, इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस कहने का कॉन्सेप्ट आया, तो वो किसका दिया हुआ रहता है कंपल्सरी? क्रो एंड क्रो. इनके हर डेफिनेशन खोल के देखो क्रो एंड क्रो के, इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस कहने का वर्ड क्या है ना, इस्तेमाल करा हुआ है. नेक्स्ट वन, द फादर ऑफ द एजुकेशन साइकोलॉजी. एजुकेशन के फादर एंड ग्रैंडफादर ऑफ द एजुकेशन. ग्रैंडफादर ऑफ द एजुकेशन. एजुकेशन फर्स्ट वन फादर ऑफ द एजुकेशन कौन है देख लो, जॉन्स एमॉन्स कम्युनियस. कम्युनियस ये तो क्या है? पेस्टोलॉजी. पेस्टोलॉजी. पेस्टोलॉजी करने वाले एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिनको क्या है? ग्रैंडफादर ऑफ द एजुकेशन करके पुकारते हैं. अनदर कॉट इज, ये कॉट किसका दिया हुआ है अगर पूछ सकते हैं. साइकोलॉजी. साइकोलॉजी वाज फर्स्ट लॉस्ट देयर सोल. फर्स्ट लॉस्ट देयर सोल, पहले सोल को गंवा लिया, सोल को भूला. लॉस्ट देयर सोल, देन लॉस्ट देयर माइंड, देन lost their conscious, lost their conscious, and finally till they retain. अब बचा कौन सा है? retain. till the retain कौन सा बचा है? behavior. ऐसा बोलने वाला इंसान कौन है? तो ये कॉन्सेप्ट पहला दिया हुआ है, हमको सबको मालूम है, लेकिन ये लाइन कौन बोलता है? साइकोलॉजी वाज फर्स्ट लॉस्ट देयर सोल, देन लॉस्ट देयर माइंड, देन लॉस्ट देयर कॉन्शियस, फाइनली दे रिटेन द बिहेवियर. ये बोलने वाले कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ. विलियम वर्ड्सवर्थ. विलियम वर्ड्सवर्थ ये बात बोलते हैं, बहुत ध्यान से. इंग्लैंड के हैं विलियम वर्ड्सवर्थ. ऑब्जर्वेशन इज यूज्ड इन द स्टडी ऑफ. ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा कहां पे तुम्हें इस्तेमाल करते हैं? कौन कौन से सब्जेक्ट्स में तुम्हें ऑब्जर्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं? वन इज अ बायोलॉजी, एंड इज ए साइकोलॉजी, उसके बाद में एस्ट्रोनॉमी. ये तीन के अंदर ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है. एस्ट्रोनॉमी में तो ऑब्जर्वेशन के बिना चलता ही नहीं है. तो किधर किधर घुमा, किधर किधर सैयारे किधर गए, प्लैनेट्स किधर किधर गए अगर बोल के उसे ऑब्जर्वेशन करना जरूरी है. बायोलॉजी के अंदर माइक्रो इसके ऊपर वहां भी ऑब्जर्वेशन इस्तेमाल होता है. नेक्स्ट साइकोलॉजी के अंदर क्या है? ऑब्जर्वेशन इस्तेमाल होता है. एजुकेशनल साइकोलॉजी हमको पढ़ा रहे हैं, लास्ट मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, एजुकेशन साइकोलॉजी हमको पढ़ा रहे हैं. इससे अभी तक भी क्या फायदा हुआ साइकोलॉजी के अंदर? इसमें अभी तक भी एजुकेशन के अंदर क्या चेंजेस हुए एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ाने से? एक मेन चेंजेस है CCE. कहां है? CCE. ये चेंजेस बड़ा आया सही एजुकेशनल साइकोलॉजी हमें पढ़ने से. क्या है? चाइल्ड सेंटर एजुकेशन. इतने दिन क्या था? टीचर सेंटर एजुकेशन था, जब हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी नहीं पढ़ते थे, सिर्फ थोड़ा बहुत साइकोलॉजी पढ़ते थे, एजुकेशनल साइकोलॉजी सेपरेट नहीं पढ़ा जाता था. जब से हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी सेपरेट पढ़ रहे हैं, वहां से हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है? CCE, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आ रहा है. तो इतने सारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारे नाम्स और बहुत सारे डेट्स आपको याद रखना है. फ्रेंड्स,
तुम्हारे में और एक रिक्वेस्ट है, और एक बार प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, और अगली वाला वीडियो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, तो अगली वाला वीडियो सून हो सके तो कल ही डालूंगा। 100% कल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर नहीं हुआ तो दूसरे दिन सुबह 10 बजे तक भी क्या है अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। फिर मिलेंगे।